So hello everyone, this is Snehal Shrivastava and welcoming you all in this YouTube channel. So today we will be going to study chapter 5 of class 7th, Water. So the title Water explains everything about the chapter, that it is all about water. So to understand water, first we have to understand what water cycle is. Means first we will understand what water cycle is, then we will continue the chapter. Means the first page of the this chapter explains water cycle. Okay, so as we can see that there are many water bodies like river, ocean, seas, icebergs and many more. So when sunlight falls on these water bodies, this sunlight means this water gets evaporated in the form of water vapor. After rising some height, the temperature decreases of the atmosphere. We know that above height has lesser temperature. So due to less temperature, the water means the water vapor start condensing and adding up with each other. They form clouds by adding up with each other, or we can say by condensation. When they form clouds and go to some hilly areas or above heights, means temperature decreases more, then the water means the clouds start raining. When the clouds start raining, water again comes back to the surface of the earth, means to the other normal water bodies from where it has been evaporated. Means water comes back to the same point from where it was evaporated. Means it again come back to the surface. So this is water cycle. Okay, now I hope you can understand what water cycle is basic, the basics of water cycle. And in class 7th it's not much more, it's just at 9. So we can say, as mentioned in the book, that earth is like a terrarium. What is terrarium? In your book, in the first page of this chapter, in the left side, it is mentioned that terrarium is an artificial enclosure for keeping small house plants. Means a kind of a jar in which plants are kept in the house. So earth is same like that terrarium, because the water which is inside the earth remains inside the earth. Through the water cycle, it gets evaporated and again come back to the surface of the earth in the form of rain, and again converted into the water bodies like rivers, oceans and seas and many more. सो वाटर साइकिल आप लोग समझ गए होंगे कि पानी जहाँ से इवापोरेट होके गया वापस आया, दैट इज वाटर साइकिल. एंड आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ अभी मैंने टेरेरियम भी बताया. टेरेरियम एक जार होता है, जार के अंदर प्लांट्स रखे जाते हैं घरों के अंदर, जिससे कि वो सेफली रखे रहें. तो अर्थ को भी उसी तरह से कंपेयर किया गया है कि जो अर्थ है वो टेरेरियम की तरह है. इसके अंदर जो पानी है वो उसी के अंदर रहता है, कहीं बाहर नहीं जाता. जितना पानी अभी है उतना पानी रहता है. एक और दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है जो थोड़ा सा अटपटा भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा. दैट कॉन्सेप्ट इज कि आज जो हरियाणा में या कहीं पर भी बारिश हो रही है, मे बी कल को वो वाटर जो इवापोरेट हुआ हो अमेजन रिवर से, एंड इट इज रेनिंग इन द अदर पार्ट ऑफ द अर्थ. सो यस, दैट इज पॉसिबल, क्योंकि वाटर इवापोरेट हुआ, क्लाउड बना एंड फिर जाके कहीं पे रेन किया. सो दैट इज पॉसिबल. एंड ये वाटर वही वाटर है जो आज से मिलियन ईयर्स पहले था. क्यों? क्योंकि वाटर चेंज नहीं हो रहा, वाटर वही है, बस वो रिसाइकिल होता जा रहा है. तो हमें नया लगता है, साफ लगता है, ऐसा कुछ मतलब कि है वही पार्टिकल्स. H2O वही है. ठीक है, H2O मतलब वाटर का केमिकल कंपाउंड होता है. H2O वो तो बाद में पढ़ा जाएगा, साइंस का पार्ट है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे. नाउ टेरेरियम के बाद बात आती है कि वाटर के सोर्सेस क्या है. टेरेरियम मैंने बताया ना, एक जार है जिसके अंदर प्लांट्स रखे जाते हैं. उसी तरह अर्थ है जिसमें पानी को रखा है. पानी उतना ही है जितना पहले मिलियन ईयर्स पहले था, या बिलियन ईयर्स पहले था, या 1000 साल पहले था, या एक दिन पहले था. ठीक. नाउ पॉइंट इज मेजर सोर्सेज ऑफ दीज फ्रेश वाटर आर रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स. मतलब जो फ्रेश वाटर होता है उसके मेजर सोर्सेज क्या हैं. तो उसके मेजर सोर्सेज हैं रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ग्लेशियर्स हो गए. ये फ्रेश वाटर, ध्यान देना है कि ये फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं, ये वाटर के नहीं, मतलब
ऑब्वियसली फ्रेश वाटर इज अ वाटर, लेकिन वाटर दो तरह के होते हैं, एक फ्रेश होता है और एक सलाइन वाटर होता है। सलाइन वाटर जो होता है उसमें सॉल्ट कंटेंट होता है एंड फ्रेश वाटर जो होता है उसमें सॉल्ट कंटेंट नहीं होता। सो दिस इज द पॉइंट कि ये डिफरेंस है। अब आप पूछोगे कि सलाइन वाटर कहाँ होता है सर, तो सलाइन वाटर जो होता है वो ओशन एंड सीज में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसमें नमक होता है, इसीलिए। वो नमक कहाँ से आता है? जनरली जो नमक उसमें पाया जाता है वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और भी कई तरह के कार्बोनेट्स वगैरह पाए जाते हैं। ये आते कहाँ से हैं? तो इसको हम बड़े क्लासेस में डीप में डिस्कस करेंगे। अभी मैं हल्का सा बता देता हूँ कि वहाँ पे जो कुछ एनिमल्स कोरल्स होते हैं वो कैल्शियम वगैरह से बने होते हैं, तो वो अल्टीमेटली जब वो डेड होते हैं तो वो नमक के फॉर्म में, मतलब कि अदर एलिमेंट से, मेटल वगैरह से मिल करके वो नमक को फॉर्म करते हैं, मतलब अदर एलिमेंट से मिलके नमक को फॉर्म करते हैं। ये प्रोसेस होता है। बाकी डीपली हम इसको स्टडी करेंगे, मैंने हल्का सा बताया है जिससे आप आइडिया लगा सको कि हाँ यहाँ पे नमक कैसे पाया जाता है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पेज पे मैप बना हुआ है। मैप के नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता है जो कि कॉमन सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट जो हम खाने में यूज़ करते हैं। तो समुद्र वगैरह से ही, तो गुजरात वगैरह में बहुत ज़्यादा नमक प्रोड्यूस होता है। तो ये रीज़न है कि वहाँ पे नमक कैसे होता है, समुद्र है, समुद्र से वो नमक निकालते हैं और वो पैक करके सेल करते हैं, और ये वही नमक होता है जो हम खाते हैं ना। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। अभी मतलब कि एक पॉइंट है, जैसा हमें पता है कि 3/4 जो अर्थ का सरफेस है वो कवर्ड है वाटर से, मतलब 75% वाटर जो है वो अर्थ पे है। तो अभी आप सोचोगे यार कि जब पानी 75% ऑलरेडी है, ठीक है, और 25% अराउंड लैंड है, तो 75% वाटर होने के बाद भी वाटर स्केर्सिटी कई जगह क्यों देखी जाती है? जैसे राजस्थान के एरियाज, जो डेजर्टेड एरियाज हैं, वहाँ पे क्यों पानी की कमी होती है? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आता है। सिर्फ डेजर्टेड एरियाज ही नहीं, अदर रीजन्स भी ऐसे होते हैं जहाँ पे वाटर की, प्योर वाटर की स्केर्सिटी होती है। वाटर तो बहुत है लेकिन प्योर वाटर की कमी है। अब हम इस डेटा को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो हम ज़्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे कि वाटर की कमी क्यों है, प्योर वाटर की, है ना। तो पॉइंट ये है कि जो ओशन वाटर है वो 97.3% है, एंड ओशन वाटर और सी वाटर सेलाइन होता है। अब आप गेस कर सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में जितना पानी है उसमें से 97% के अराउंड पानी सेलाइन है, नमकीन है, जो हम पी नहीं सकते। बचा कितना? बचा अराउंड 2.7%, या हम 3% भी उसे मान लेते हैं। उस 3% में से 0.2% आइस कैप्स में है, मतलब बर्फ में जमा हुआ है, वो भी हम इजीली नहीं निकाल सकते। फिर कुछ 0.68% ग्राउंड वाटर में है, मतलब कि हमें गड्ढा करने के बाद वो पानी निकालना पड़ेगा। फिर फ्रेश वाटर लेक्स है कुछ 0.009%। अब देखिए, लेक में 0.009% वाटर है। इसी तरह से बहुत कम क्वांटिटी में, ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि बहुत कम क्वांटिटी में हमारे पास वाटर, फ्रेश वाटर अवेलेबल है, प्योर वाटर अवेलेबल है पीने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर है वो आइस के फॉर्म में जमा हुआ है, तो वो भी नहीं पिया जा सकता। तो इस वजह से भी बहुत कम, तो हमें वाटर को प्योरीफाई करना पड़ता है। दैट्स वाई वी यूज़ प्योरीफायर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, फिल्टर्स हम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें वी यूज़ इट। नाउ अभी ओशन की बार बार सैलिनिटी के बारे में बात आ रही है। नाउ व्हाट इज सैलिनिटी? बता दिया कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नोन एज सैलिनिटी। मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है वाटर का, उसमें जितना सॉल्ट प्रेजेंट है उसे सैलिनिटी बोला गया। ओशन की सैलिनिटी कितनी है ये दिमाग में बार बार आ रहा होगा। कितना सैलाइन है ओशन? क्या नमक ही भरा हुआ है, ऐसे बाल्टी में भरा और नमक नमक निकल आया, या कम भरा है, कितना है? तो उसका आंसर है 35/1000। मतलब कि अगर 1000, मतलब कि ओशन की जो सैलिनिटी है वो 35 पार्ट्स पर 1000 है। मतलब कि 1000 ग्राम अगर हम पानी लेते हैं, वाटर निकालते हैं ओशन से, तो उसमें से 35 ग्राम हमें सॉल्ट मिलता है, 35 ग्राम सॉल्ट हमें वहाँ से
निकल के आता है। उसका एक प्रोसेस होता है इवापोरेशन का, जहाँ इवापोरेट हो जाता है पानी और सॉल्ट बच जाता है, उसी के थ्रू हम इसको निकालते हैं। इसके बाद अभी आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि डेड सी है इजराइल में, हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। मतलब 1 लीटर वाटर में 340 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम वाटर अगर हमने लिया तो उसमें से 340 ग्राम जो है वो नमक पाया जा रहा है। और वहाँ पे मतलब क्योंकि ये डेड सी ऐसे बोला गया है, डेड सी नाम दिया गया है, और इतना ज़्यादा खारा है कि उस पर कोई भी आराम से फ्लोट कर सकता है, क्योंकि उसमें नमक बहुत ज़्यादा है। नमक ज़्यादा होने से वो गाढ़ा हो गया, और गाढ़ा होने की वजह से उस पर कोई भी फ्लोट कर सकता है। मेनली स्विमर्स इंसान की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, नाउ ये एक पार्ट था हमारे इस चैप्टर का। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं ट्राई करूँगा एक ही वीडियो में हो जाए। अगर नहीं हो पाता तो मैं 2 वीडियो में 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूँगा, जिससे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए।